गुड मॉर्निंग। Good Very morning, good morning. Aunty. Wonderful morning. Good Good morning. morning, good morning. Hi, Hi, good good morning. morning. Good morning. Good morning and happy birthday, Good Navdeep. morning, Aunty. Thank Happy you. birthday, Navdeep. Thank you. I don't know भाई whether नहीं है she's वो। getting logged in. Thank Navdeep you. Yeah, is yeah. logged in. Thank you. अच्छा, आंटी को सविंदर आंटी की बिटिया का बर्थडे है तो फिर सारा Thank you. मम्मास को सारा क्रेडिट जाना चाहिए जी, सबसे पहले। बड़ी एक बड़ी दिन की एक मैरिज एनिवर्सरी भी है। आपकी किसकी? ब्लेसिंग चाहिए। बड़ी देखो। वाली डॉटर की। अच्छा, हाँ। एक ही दिन। हाँ जी, एक ही दिन, एक तोड़ दी, एक ले ली। अरे वाह, गुड आपकी मॉर्निंग। बड़ी वाली बेटी को भी बहुत बहुत शादी और आने वाली जिंदगी मुबारक हो। ब्लेसिंग्स दो। For love and togetherness and their happiness. And नवदीप तो खैर everybody's favorite, इतने प्यार से इतने अच्छे से आपने अपनी दोनों बेटियों को पाला है। मतलब नवदीप के साथ तो मुझे रहने का मौका मिला जब मैं सिंगापुर गई थी। And she is so incredible. I mean selfless, बहुत प्यारी She is सी। here So now. We should wish her. अच्छा, आगे hi के। नवदीप. We've been talking about you. Happy Thank- birthday. Thank you. Happy birthday, Thank you. Happy birthday Navdeep Thank you. and Savinder आप म्यूट aunty. हो। नवदीप। नवदीप आप म्यूट हो। नवदीप म्यूट है। Thank you so Yes. much. यार Yes. नवदीप तो हम आंटी को भी विश कर रहे थे, मैंने कहा आपकी Everyone, मम्मा को love हम you all. कर दें। अच्छा, मम्मा को she is भी your कर mama. दें। Thank you. ये इनकी हाँ, मम्मा है। सविंदर आंटी नवदीप की हाँ मम्मा जी। है। Oh मेरी मम्मा है। wow. So Happy Navdeep birthday, lives in Navdeep. Singapore and Savinder aunty lives in Ludhiana or Jalandhar aunty? Jalandhar. Jalandhar जी, Jalandhar. Jalandhar. Oh my God. Jalandhar. Happy birthday. Thank you, ma'am. Thank you for bringing me to this world. Happy birthday, कितना बेटा. सुंदर किस कर रही है सविंदर आंटी। for your daughter. So sweet. Wow. मेरी प्यारी माँ। हाँ, मेरी प्यारी Thank you so माँ, much. बहुत ही प्यारी माँ है। हाँ, ओल्ड हो गई है अभी जैसे। आज तो अपनी बेटी के लिए कविता लिखनी पड़ेगी आंटी आपको, लिखी हुई जो है, आप हमको कल सुनाइएगा। मैं कल सुनाऊंगी। आपको होमवर्क दे दिया हमने आज का। It's okay. हाँ, दोनों take it दोनों easy. के लिए लिखी हुई है। Thank you so Beautiful. much. So I'm so glad that like we get to celebrate the birthdays together, send blessings and share the joys of life, and Thank you it's so so much. beautiful. And that too early in the morning. अभी तो sunrise भी नहीं हुआ है, मतलब दिल्ली में तो अब थोड़ा सा लेट सूर्य देवता आ रहे हैं। तब तक हम आज मैजिकल एयर को थैंक यू बोलेंगे, एक और एलिमेंट। Yeah, सबके साथ। हाँ, आपके वहां पे सनराइज हो गया है ना नवदीप? हाँ जी, it's 8:30 a.m. here, so हाँ, अभी तो sun is quite bright here. अच्छा मेरे आसनसोल में भी हो गया है, बहुत मस्त। अच्छा, हाँ, so Asansol and Calcutta. Abhi, when I was in Calcutta, Yeah. so I would actually, so my hotel room had a huge glass window. Okay, like one side of it was a huge room. And glass window जो थी वो बिल्कुल head to toe थी, मतलब पूरा that entire wall was कांच का। तो उसमें जो कर्टन्स थे, एक अंदर वो ट्रांसपेरेंट वाला कर्टन होता है और उसके ऊपर से देर आर द हेवी सैटिन वंस, नो, सो सैटिन वंस वर ऑलवेज क्लच्ड, यू नो, एंड वो मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर्टन्स को ही करती थी। एंड 5:20 my eyes would open up, you know, because it's east, no, total east coast, so the sunrise happens there faster. So yes, towards Assam and all that, na, sunrise happens much faster. So even Singapore's that side, even like Calcutta is that side. West Bengal also brightens up quite early in the morning, and by 5 बजे शाम को वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है. So it's here, like in north here, East India, it is different now. It's still dark outside, also because of the coming winters. Yeah. So this is Same these are the Jaipur. colors of nature. Jaipur is like Delhi. Jaipur's like Delhi. It's in one straight Yeah. line. Yeah. Jaipur, Agra, Delhi. It's called a golden triangle. Oh, new thing. Yeah, it's called a golden triangle. It's exactly in a triangle, almost equidistant from each other. That's why it's called a golden triangle. Yeah. So today's practice, now we are done with अपने जो भी dreams and desires थे, हमने उसके लिए वर्क किया, हमने उसको विजुलाइज किया, हमने उसको बहुत सारा थैंक यू बोला। आज हमारा फाइनली डे 23 है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत प्रोफाउंड है। अब हम सारी ऐसी चीजों के लिए थैंक यू करेंगे जो हमारी जिंदगी के बाहर हैं,
ठीक है, लेकिन शायद हमने इतनी डेप्थ में अभी तक सोचा नहीं था कि इनकी वजह से ही हमारी जिंदगी चल रही है। सो आज हम बहुत सारी एनर्जी कॉन्ज्योर करेंगे, इकट्ठा करेंगे यूनिवर्स की एनर्जी एयर को थैंक यू बोल के। और आज वाले चैप्टर में एंड में ये लिखा हुआ है दैट वंस यू हैव डन दिस, व्हेन यू हैव सेड थैंक यू टू द एयर दैट यू ब्रीथ, सो एयर दैट यू ब्रीथ एक्चुअली पांचों एलिमेंट्स को थैंक यू करना है, बिकॉज पांचों के इम्पैक्ट से जिंदगी हमारे लिए हो रही है, मतलब हमारी लाइफ पॉसिबल है जो हमारे आउटसाइड जो 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि धरती माँ, देन इट इज वाटर, अमृत जल पिता बोलते हैं, फिर अग्नि देवता बोलते हैं, फिर मैजिकल एयर हवा जो सांस लेते हैं, और फिर स्पेस जिसको हम एथर भी बोलते हैं इन इंग्लिश। सो इन पांचों की वजह से लाइफ पॉसिबल है। नॉट जस्ट इन पांचों की वजह से, ये हवा भी इसीलिए है बिकॉज 9 प्लैनेट्स और सन एंड मून की वजह से, जिस तरह वो लोग सर्कल में चलते हैं, जिस तरह उनका साइकिल है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो वैसे वैसे हवा का प्रेशर कम होता जाता है। इनफैक्ट एक लेवल ऐसा आता है जहां पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है। अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में हम जाते हैं, सो देयर इज एक्चुअली वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। लोगों को मास्क लगाना पड़ता है या सिलेंडर्स से ऊपर जाना पड़ता है। जो लोग हिमालयास पे जाते हैं वो सांस नहीं ले पाते, उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है बॉडी की वो अलग होती है, दैट उनको अपने लिए ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स लाइक एयर प्रेशर के लिए भी उनका कंट्रोल होता है, बिकॉज प्रेशर भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है हमारे प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे, ह्यूमन लाइफ को पॉसिबल करने के लिए, ताकि हम सब लोग जिंदा रहें, हम हेल्दी रहें, हार्मनी में रहें, इसलिए धरती के ऊपर ऑक्सीजन है। देयर इज नो अदर प्लैनेट जहां पे ऑक्सीजन है और जहां पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। तो इतना ब्यूटीफुल हार्मनी के साथ सारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिससे कि ये पॉसिबल हो जाए कि धरती पे जीवन हो। देयर इज लाइफ पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, and that is the best part about it, and that is what we are going to be saying thank you to today. So air को thank you बोलने का मतलब है कि हमने पांचों एलिमेंट्स को सांस लेते रहते हैं 72 to 80 टाइम्स हम हर मिनट में ब्रीद कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर सांस 2 सेकेंड के लिए 1 मिनट तो एंड्योर कर पाते हैं, 1 मिनट से ज्यादा अगर हम सांस नहीं ले पा रहे तो वो जीवन ही खत्म हो जाएगा। मतलब लिटरली इट इज लाइफ सस्टेनिंग, बिकॉज ऑफ दिस हम जिंदा हैं। तो इसलिए आज वो मौका है, और जब एयर को थैंक यू बोलते हैं तो ऑब्वियसली हम धरती को थैंक यू बोलते ही हैं, बिकॉज एयर कहाँ से आती है? धरती पे जो उगे हुए प्लांट्स है उनसे आ रही है ना। जितने भी ग्रीन्स होते हैं, दोज ग्रीन्स आर एमिटिंग ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, दैट्स टेकन अप बाय द प्लांट्स, और उसको कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम ब्रीथ करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, ये जो प्रोसेस होता है इसमें सनलाइट मैंडेटरी होती है। सनलाइट के बिना जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे ऑक्सीजन नहीं आ सकती। तो एलिमेंट ऑफ फायर तो वैसे ही आ गया है ना। और स्पेस, बिकॉज स्पेस में है ये ऑक्सीजन जो हम कभी भी फ्री में इनहेल करते रहते हैं बिना पैसे दिए। सो ऑलरेडी स्पेस का एलिमेंट है इसमें। वाटर का एलिमेंट इसलिए है बिकॉज ऑक्सीजन जो निकलती है वो उसमें H2O भी होता है। देयर इज ऑलवेज मॉइस्चर इन द एयर। ड्राई एयर में पॉसिबल ही नहीं है ब्रीथ करना। बहुत मेजर प्रेशर और ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस हो जाते हैं अगर ना हो वाटर तो। सो वाटर या मॉइस्चर का होना जरूरी है। नॉट जस्ट दैट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ H2O दैट इज वाटर भी एक्सेल करते हैं। हमारी सांस में पानी होता है, ठीक है, जो हम छोड़ते हैं। सो दैट वे वाटर एलिमेंट भी इसमें ऑब्वियसली है ही है। एंड देन ऑफ कोर्स अब बचा, और एयर तो खुद ही अपने आप में एक एलिमेंट होता है। सो ये भगवान का सबसे बड़ा रूप है, और ये 9 प्लैनेट्स की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन है। जिस तरह से उनका प्लेसमेंट है, जिस तरह से उनका डिस्टेंस है, अगर 0.1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे हो जाए ना ये 9 प्लैनेट्स, तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि प्लैनेट्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। और हम फ्री में जब से पैदा हुए हैं तब से ये सांस लेते जा रहे, लेकिन हमने कभी शायद दिल से रियलाइज करके थैंक यू नहीं बोला है कि
जान कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो जान इसकी वजह से है। लेकिन we will take that opportunity today and thank all the beautiful things in nature. आज नेचर को थैंक यू बोलने वाला दिन है बेसिकली। और इसमें we'll just see the image। और आज इसलिए भी अच्छा दिन है क्योंकि हम एक बहुत ही खूबसूरत बुक शुरू कर रहे हैं, द हीरो। सो इफ वी एक्चुअली सी, इसमें हमको 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, है ना। और पूरी हवा में, मतलब पेड़ के आसपास थैंक यू बोलना है। दैट मीन्स आप अर्थ को भी थैंक यू बोल रहे हो, स्पेस को भी बोल रहे हो, रोशनी है तो फायर एलिमेंट को भी बोल रहे हैं। So everything is all about, these beautiful nature that God has gifted us with. It's a gift to us. So हम फ्री में गिफ्ट नहीं लेंगे, नेचर बस यही कह रहा है कि हमको थैंक यू बोल दो and you will enjoy the best of health. जिन जिन लोगों के लाइफ में कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वो इन 5 की डिसहार्मनी की वजह से होते हैं। जो हमारे वेदास उपनिषद्स हैं उन सब में लिखा हुआ है कि बीमारी अगर किसी शरीर में हो रही है, तन में हो रही है, तो वो इन 5 की डिसहार्मनी या इम्बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स की वजह से होती है। ओके, सो ये वाली प्रैक्टिस अगर कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। Okay, so yeah, we'll get reading. Yes, Navdeep, the beautiful Navdeep and the birthday girl. Please start reading. Are you there? You'll have to unmute. Yeah, okay. Good morning. Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Chase, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life, opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things would have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain us. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness
of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than few minutes. When I began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive an absolute abundance. So today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words "thank you" as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths,
Say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you Thank so you. much, Navdeep, for reading so you. beautifully. Thank you. Thank you. So such a cute short chapter, but very important. So इसमें the key learning is that nature के लिए thank you बोलते हैं जब हम, तो हमारा gratitude एक नए level पे पहुंच जाता है. इसमें लिखा है that your gratitude reaches a depth, okay, and it gives us a power. So nature के लिए, as in फूलों के लिए, पत्तियों के लिए, for the dew on the grass, for the grass, for the trees, for the plants, for the ocean, for the sea beach, for the trees around us, air के लिए, sun के लिए, planets के लिए, moon के लिए, stars के लिए, constellations के लिए, ठीक है, ये सब नेचर है. और अलग अलग रंग बिरंगे जो फ्लावर्स होते हैं, द कलर ऑफ द नेचर्स, वेदर के लिए, जिंदगी के लिए, लाइफ है, लोग हैं, ओके. सो और लोग इतने सारे, मतलब फॉर द पीपल अराउंड, तभी तो मीनिंग आता है लाइफ में. सो जब हम नेचर के लिए थैंक यू हो जाते हैं, जो चीज भगवान ने बनाई है, लेकिन हम बहुत ओवर कंज्यूम्ड रहते हैं, आई थिंक, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ में, दैट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं दैट दीज आर द रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर. सो दिन की शुरुआत ही इनको थैंक यू करके होनी चाहिए एवरी डे. सो इस किताब में हमने कुछ कुछ प्रैक्टिसेस देखी हैं which we should be doing on a daily basis. Okay, like magic dust, everyone. जो लोग भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, people जो ट्रैश बिन कलेक्ट करते हैं, जो पब्लिक एरियाज की क्लीनिंग करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, तो उन सब के लिए, डिलीवरी पीपल, ऑल द स्विगी एंड जोमैटो, ऑल द उबर एंड ओला ड्राइवर्स, मतलब जो लोग दिन रात हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए काम करते हैं, उनको मैजिक डस्ट देना, ठीक है, ये हमारा फर्ज बनता है. ये भी बहुत सेल्फलेस एक्ट है, isn't it? मतलब डायरेक्टली हमारे घर के अंदर ये लोग ऐसे नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन दिन रात इनकी वजह से हमको बहुत ज्यादा लाइफ इजी हो जाती है, हाइजीन हो जाता है. सो मैजिक डस्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली जो आज की प्रैक्टिस है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये करके रोंडा बर्न ने लिखा है कि जब मैंने नेचर के लिए थैंक यू करना शुरू किया, उसके बाद मेरी जिंदगी में सारी मटेरियल चीजें आने लगी जो मैंने सपने में सोची थी. मटेरियल थिंग्स मतलब जो भी यू नो, लग्जूरियस कार, घर खरीदना, बहुत अच्छे कपड़े होना, तो ये सारे मटेरियल थिंग्स होती हैं. तो कहती हैं कि जब मैंने नेचर को थैंक यू कहना शुरू किया, तो सारी मटेरियल चीजें मेरी जिंदगी में आने लगी. सो यू विल सी द वेल्थ दैट यू एक्यूमुलेट, पैसा, यू नो, शूज, क्लोथ्स, मतलब सब नेचर से ही तो बन रहा है. कहाँ से कपड़े बनते हैं? ऑब्वियसली द मदर अर्थ इज प्रोड्यूसिंग इट, हीट की वजह से ही बन रहे हैं, है ना. परफ्यूम अगर बन रहा है तो वाटर एलिमेंट ही तो है वो. लग्जूरियस परफ्यूम है, मे बी इट इज द हाई एंड परफ्यूम कोई भी, लेकिन बन तो पानी से ही रहा है ना. और जो उसको हम जब यूज करते हैं तो एयर एलिमेंट ही यूज होता है, एयर से डिफ्यूज होके अरोमा आता है, उसमें से बहुत सुंदर खुशबू आती है. सो हर चीज 5 एलिमेंट्स का अमेलगमेशन होती है. सो इसीलिए आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे, और रोज हमको ये करना है. मतलब 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स लेना, ये कोई मुश्किल तो नहीं है. बस अब आज की असाइनमेंट में हमको बस सांसें लेनी है, और सांसों के साथ दिल से शुक्राना करना है जो सांस अंदर जा रही है, जो लाइफ गिविंग होती है. जिंदगी अगर सांस नहीं आए तो जिंदगी ही नहीं होगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है, कितना भी सब रखा रह जाएगा, जो हमने घर और गाड़ियां और ये सब एक्यूमुलेट करी हुई हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर सांस नहीं है तो इसीलिए, और हेल्थ के लिए, यू नो, लाइक इन 5 एलिमेंट्स का थैंक यू बोलना और अपनी सांसों का थैंक यू बोलना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है. हमको पता नहीं, हमें लगता है ये बहुत छोटी सी चीज है, बट सब्लिमली क्वांटम लेवल पे जब हम थैंक यू बोलते हैं एयर के लिए, जो सांसों के लिए शुक्राना करते हैं, वैसे भी तो बोलते हैं ना कि सांस सांस में शुक्राना होना चाहिए.
सांस सांस में शुक्राना होना चाहिए। सांस सांस में शुक्राना मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ शुक्राना होता है ना, बिकॉज इन एवरी ब्रेथ यू आर सेइंग थैंक यू। हम कोशिश इसीलिए तो मैजिक बुक लगातार कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू रीच दैट लेवल वेयर एवरी ब्रेथ वी से थैंक यू। ठीक है, चाहे बाहर की दुनिया में अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है, रियली डजंट मैटर, आप थैंक यू बोलो, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स आती है यूनिवर्स का कम्युनिकेशन है, वो संदेश है कि जो काम कर रहे हो रास्ता उसको बदल लो। You know, it is as simple as that. So this is what the universe tries to tell us. जो आप काम कर रहे हो उसको बदल लो, नहीं वर्क करेगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम के रूप में आता है। तो उस वक्त भी थैंक यू बोलना हमारा फर्ज है। हम तो समझते ही नहीं है कि हमारे लिए थैंक यू है ना, मतलब हमारे लिए है कुछ। सो इसमें लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें दिया हुआ है कि एंशिएंट टीचिंग्स में लिखा है कि जब आप सांसों के लिए थैंक यू, रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ के लिए थैंक यू बोलते हो, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है, ये वाला। एंशिएंट टीचिंग्स इट इज सेड दैट जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि जो एयर के लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, इसका मतलब है आपका शुक्राना, ग्रैटिट्यूड एक नई पावर ले लेता है, और फिर उसके बाद आप एक ट्रू एल्केमिस्ट हो जाओगे। एल्केमिस्ट उस कीमेगार को बोलते हैं जो सोने को भी पत्थर को सोने में बदल देता है, किसी भी चीज को सोना बना देता है वो। तो हम अगर एल्केमिस्ट हो जाए तो हम कोई भी चीज हमारी लाइफ में है, हम वी विल बी सराउंडेड बाय ओनली गोल्ड। हर चीज को, हर पत्थर को आप सोना बदल सकते हो। ठीक है, इसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। और एल्केमिस्ट एक बुक भी तो है, आई डोंट नो वेदर यू रेड इट, आई हैड रेड इट इयर्स अगो, आई थिंक 10-15 साल पहले। सो दिस इज व्हाट इट इज, एल्केमिस्ट इज द पर्सन जो पत्थर को भी सोने में बदल देता है। तो हमारी जिंदगी में भी हम पत्थर को भी सोने में बदल देते हैं, हम कोई भी चीज अचीव कर लेते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए पॉसिबल हो जाती है। तो प्रैक्टिस करनी कैसे है अब? सो प्रैक्टिस करने के लिए हमको दिन में 5 बार, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, सो 5 तत्व होते हैं, तो दिन में 5 बार हमको एक टाइम में 5 बार सांस लेनी है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन और स्लोली ब्रीथ करना है। आंख बंद करके ब्रीथ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी मतलब इट डज मेक अ डिफरेंस, दैट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है और दिल से शुक्राना निकलेगा। सो धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस अंदर लेनी है और फिर सांस छोड़नी है 1 टाइम। सो छोड़ते वक्त बहुत मतलब फील द जॉय, फील द फीलिंग ऑफ टेकिंग इन द एयर। जब अंदर सांस जा रही है तो उसकी फीलिंग को फील करना है हमको, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो जॉय फील करना है, देने में खुशी। हमेशा देने में खुशी ज्यादा होनी चाहिए। जब देने में खुशी ज्यादा होगी, अपने आप जिंदगी बदलने लग जाती है। तो आज की प्रैक्टिस में यही है, 5 बार सांस ली, इनहेलेशन, और फिर एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे सांस को जॉय के साथ में। दूसरी बार सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे फील करेंगे कि सांस अंदर जाके आपकी पूरी बॉडी को हील और रिपेयर कर रही है, बहुत ताकत दे रही है, इम्यूनिटी अच्छा कर रही है। और फिर से सांस छोड़ेंगे और जॉय फील करेंगे कि सारी इम्प्योरिटीज, गंदगी, नेगेटिविटी हमारी जिंदगी से बाहर जा रही है सांसों के थ्रू होके। फिर तीसरी बार सांस अंदर लेंगे और फील करेंगे कि सारी वर्ल्ड की पावर हमारे अंदर आ रही है। और फिर धीरे धीरे जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो जॉय फील करेंगे कि सारी नेगेटिविटी, बुराइयां, सब कुछ, बीमारियां सब लाइफ से बाहर निकल रही है। फिर चौथी बार सांस अंदर लेंगे, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, शुक्राने के साथ कि अंदर ग्रैटिट्यूड जा रहा है, एक एक सेल के अंदर जा रहा है। और फिर सांस छोड़ेंगे ये सोच के कि सारी नेगेटिविटी, वॉट एवर इट इज, बीमारी आप बाहर छोड़ रहे हो। फिर 5वीं बार सांस अंदर लेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे सारी नेगेटिविटी, बुराइयों के साथ में। अब 5 बार हमने सांस अंदर ली और छोड़ी, उसके बाद हमको धीरे धीरे बोलना है, and thank you for the magical air that I breathe. Okay? और दिल से फील करना है कि सांसों की वजह से हम जिंदा हैं। तो ये एक बार की प्रैक्टिस है। ऐसे हमको दिन में आज 5 बार करना है। इट डजंट मैटर आप कहाँ हो। वैसे रॉन्डा बर्न ने बोला है कि बाहर की तरफ, मतलब अगर आपके यहाँ कोई टेरेस, बालकनी, गार्डन्स है, वहां जाके, या घर में अगर आप हो तो विंडोज एंड डोर्स जो है उनके पास में आपको जाके करना है ये, मतलब जो बाहर की तरफ आउटलेट्स हैं आपके घर के,
वहां जाके करना है, बट डजंट मैटर। उन्होंने लिखा है कि आप लाइन में क्यू में खड़े हो तब भी आप कर सकते हो, अगर आप चल रहे हो तब भी आप कर सकते हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो तब भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आई वुड स्टिल एडवाइज कि इतनी भी कोई वो नहीं है हमारे पास कि हम 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए एक जगह रुक के फील करके नहीं कर सकते, है ना, इतने भी व्यस्तता नहीं है। सो डू इट एक जगह स्टेशन होके, खड़े होके या बैठ के, और अच्छे से। उसके बाद आप देखना कि बॉडी में हीलिंग कितनी फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर बॉडी वेट लूज करना है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और प्रॉब्लम्स है, तो बिकॉज ऑफ द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, बिकॉज वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स है बॉडी में। तो जब हम 5 एलिमेंट्स को रोज थैंक यू करना शुरू कर देंगे, अपने आप हमारे अंदर की नेगेटिविटी, बुराइयां, इम्बैलेंस, डिसहार्मनी होती है ना 5 एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से बीमारी होती है, वो सब ठीक होने लग जाएगा। बट देन ट्राई एंड डू द प्रैक्टिस एवरी टाइम। ठीक है, अगर आप रोज, आज तो हमको 5 बार करना ही है, आज तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये प्रैक्टिस जब याद आए कर लो। डजेंट मैटर अगर दिन में 5 बार नहीं कर सकते, यू नो, सुबह सुबह कर लो एक बार जाके, जब सुबह उठते हो सो के। सो वी ऑल लव टू गो आउट इनटू द नेचर, सो दैट टाइम वी कैन डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, दैट थैंक यू फॉर द एयर। और जैसे ही थैंक यू फॉर द एयर बोलते हैं ना, 5 एलिमेंट्स एक्शन में आ जाते हैं। मतलब ये जो एनर्जी होती है ग्रैटिट्यूड की, ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। सो इट अफेक्ट्स द एनर्जी अराउंड। तो 5 एलिमेंट्स इसकी वजह से एनर्जाइज हो जाते हैं। एंड एयर को थैंक यू बोलने का मतलब है ऑटोमेटिकली आपने सन, मून और 9 प्लैनेट्स को थैंक यू बोल दिया, बिकॉज उनकी पोजिशनिंग और उनके प्लेसमेंट के कारण हम हवा ले पा रहे हैं। नहीं तो एयर नहीं होती। अगर उनका पोजीशन या प्लेसमेंट कुछ ऊपर नीचे होता, थोड़ा आगे पीछे होता, या उनका जो रोटेशन, जो सूर्य के इर्द गिर्द सारे 9 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, अगर उसमें स्पीड में थोड़ा आगे पीछे होता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। सो यही आज की प्रैक्टिस है, और आज के बाद हम में एक पावर आ जाएगी अगर हमने ये प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो। ठीक है, और उस पावर को आप महसूस करोगे दैट आप जो बोलोगे वो सच होता जाएगा, वैसी वाली पावर। बिकॉज एल्केमिस्ट बन गए ना हम, जो पत्थर को भी सोने में बदल देता है, तो वो वाली पावर आ जाएगी। और कल वाले चैप्टर में जो डे नंबर 24 है, द मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी, इसका मतलब है ये वाली प्रैक्टिस करके अब आप जादू की छड़ी बन गए हो। आप किसी की भी प्रॉब्लम एलिविएट कर सकते हो, हटा सकते हो उनकी जिंदगी से। किसी को पैसे की दिक्कत हो रही है, किसी का बिजनेस थोड़ा डाउन हो रहा है, किसी की हेल्थ में बहुत ज्यादा चैलेंज है, किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है, किसी का घर का काम अटका हुआ है, वो हो ही नहीं रहा आगे, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस करके हम में ये पावर आ जाएगी, और कल हम उस पावर को यूज करेंगे अगेन अपनी जिंदगी के बाहर वाले लोगों पे। ठीक है, सो क्योंकि कल की प्रैक्टिस मैजिक वॉन्ड है। मैजिक वॉन्ड अगर पहले आती तो शायद हम पावरलेसनेस में करते, तो शायद अगले को इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट ये प्रैक्टिसेस 23 प्रैक्टिसेस करने के बाद ही हम 24th के लायक बनते हैं, सो विच वी विल बी डूइंग टुमारो। सो बस यही आज की प्रैक्टिस है। सो अब हम एफर्टलेसली एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इनटू गोल्ड कर देंगे। अगर ये प्रैक्टिस हम अच्छे से तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं, तो एनी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हो सकता है हमारी लाइफ के पार्ट कुछ और हो, हेल्थ हो सकता है बाल हमको हेल्दी चाहिए, हो सकता है हमें अपना डाइजेशन बहुत अच्छा करना है, हो सकता है कि हमें एनर्जी लानी है, हो सकता है हमको बहुत पैसा कमाना है, हो सकता है कि कोई इशू चल रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप इशू, वो ठीक करना है। तो डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट अब आप एफर्टलेसली, यानी कि बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के, आप अपनी जिंदगी के हर पार्ट को गोल्ड बना दोगे, एंड यू विल सी दैट कितनी जल्दी ये डिफरेंस आने लग जाएगा। सो यही आज की प्रैक्टिस है। और सुबह इट इज काउंट योर ब्लेसिंग, सुबह सुबह उठते ही, जो हम मोस्टली लोग कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है सो डोंट बीट योरसेल्फ अप, गिल्ट में मत रहना, कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, बाद में भी अगर कर रहे हैं, सुबह अगर आंख नहीं खुलती है तो कोई बात नहीं, वी आर ऑल इनटू मेकिंग, ओके, नो वन इज परफेक्ट, सो डोंट फील गिल्टी ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, वो गिल्ट फैक्टर ही नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया इसकी वजह से ये हो गया, नो you are empowered, you are precious, you are invaluable, magnificent, brilliant, majestic, जो वर्ड बोलो, phenomenal, ठीक है। सो इसीलिए अपनी लाइफ को उसी तरह रिवेयर करो और उसी तरह अपने आप को प्यार करो। सो काउंट योर ब्लेसिंग, सुबह सुबह करने की प्रैक्टिस है 10 ब्लेसिंग्स, फिर उनको रीरीड करना और हर एक के बाद 3 times थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुंह से बोलना, ठीक है। ट्राई नॉट डूइंग इट इन द माइंड, ट्राई टू स्पीक आउट लाउड, उसका डिफरेंस बहुत डिफरेंट होता है। सो हम अपनी दिन की शुरुआत 10 ब्लेसिंग से करते हैं, देन 5 times टुडे, तो ये अलार्म लगा लगा के करना पड़ेगा ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो अलार्म लगा देना। एक तो हम सुबह ही कर लेंगे अभी सेशन के बाद, फिर एक मिड मॉर्निंग टाइम में करना होता है, से 10 से लेके 12 बजे के बीच में, फिर उसके बाद एक दोपहर को लंच टाइम के आसपास, शाम को और रात को, ठीक है, रात में सोने के पहले करके सोना। तो ये 5 बार हमको आज की प्रैक्टिस करनी है। आज हम सब सिंसियरली अलार्म लगा के करते हैं, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करना, बिकॉज एल्केमिस्ट बनना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सफरिंग है। तो लोगों के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी के लिए तो ये प्रैक्टिस करेंगे ही, बहुत पावरफुल होती है, लेकिन और लोगों के लिए जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जिंदगी में हमें अपने आप को यूजफुल बनाना बहुत जरूरी है। हमने शक्ति गवेन की चैप्टर में पढ़ा था ना, हायर पर्पस, वी ऑल हैव अ हायर पर्पस, ओके। सो हायर पर्पस को सर्व करने के लिए हमको ये वाली प्रैक्टिस करके एल्केमिस्ट बनना जरूरी है, ताकि अगर मैं किसी को ब्लेस कर रही हूँ या मुझे कहीं पे भी किसी की जिंदगी में हेल्थ चैलेंज लग रहा है, सफरिंग दिख रही है किसी भी तरीके की, तो मैं उसकी जिंदगी अपने थॉट से चेंज कर पाऊं। इसके लिए मुझे एल्केमिस्ट बनना बहुत जरूरी है कि अपनी भी चेंज करूं और उसकी भी चेंज करूं, है ना। इट्स नॉट दैट सिर्फ लोगों के बारे में सोचे और अपने बारे में नहीं सोचे, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रेशियस हो, है ना। सो अपने लिए और सामने वाले के लिए ये प्रैक्टिस तरीके से करनी जरूरी है, जिस तरह से इन्होंने बताई हुई है। फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड, ग्रैटिट्यूड गोइंग इनसाइड, एंड फील द जॉय ऑफ गिविंग आउट, कि छोड़ रहे हो आप सारी वो चीजें आपकी जिंदगी से निकल रही है, यू नो, जो अनवांटेड चीज है। तो ये तरीके से 5 बार ये प्रैक्टिस करेंगे और हर बार 5 बार सांस लेनी है, और इसके एंड में ये जरूर बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, ठीक है। ये वाला जो लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, और बहुत ग्रेटफुल हो दैट थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सांसें देने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए और इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए, ओके। ये बोल के उसके बाद और फिर रात को प्रैक्टिस सोने के जस्ट पहले मैजिक रॉक, टेक द मैजिक रॉक इन योर हैंड, एंड पूरे दिन छोटी छोटी चीजों को आप सोचो कि आज सन कितना ब्राइट था, आज इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आज मैंने वॉक की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज यूट्यूब पे मैंने एक बहुत अच्छा गाना सुना, यूट्यूब के लिए थैंक यू दैट में इतना इजी एक्सेस है मेरे पास, ठीक है। किसी का फोन आया, आपने बात की उनसे बहुत टाइम के बाद, उसके लिए थैंक यू। जो बहुत आपने वॉक की, में भी 2-3 किलोमीटर जो भी, उसके लिए थैंक यू। सुंदर सा गार्डन आपने देखा अपने घर के साथ में, यू नो, तो उसके लिए थैंक यू। इस तरह से जितना सोचोगे उतना ही लाइफ में चेंजेस आना शुरू होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, बिलीव मी, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट एनर्जी। अगर वो एक लैपटॉप बैग भी है ना, उसमें भी एनर्जी होती है, सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो या मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके हम सोएंगे, ताकि हमारे सबकॉन्शियस में वो सारे ग्रैटिट्यूड पेनिट्रेट हो जाए हर तरीके से। While all these practices we do on a daily basis, remember that अपने आप को पूरे दिन ग्रैटिट्यूड में रखना भी बहुत जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट असाइनमेंट हो गया उसके बाद जय शुरू हो जाती है, आप लो फील करना शुरू कर देते हो, डिप्रेसिव फील करते हो, नहीं, वैसा होगा, लाइफ है, ये सब होगा, लेकिन उस वक्त अपने लिए बार बार बोलना,
that thank you for my perfect health. Thank you for my perfect health. Thank you that I have legs, I have arms, I have lungs, I have kidney, I have a nice stomach, I have digestive system. Thank you to every cell of my body. Thank you for my perfect health. ये भी करना जरूरी है. मतलब not just मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ हेल्थ का, बट अपनी जिंदगी के लिए थैंक यू. लोगों ने कुछ कहा उसके लिए, जैसे किसी ने कुछ कहा और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको गुस्सा आया, आपको रोना आया, जो भी है, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप. थैंक यू फॉर ऑल माई रिलेशनशिप्स. ठीक है, इमीडिएटली आपका जो सेंटेंस है, आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो, ये मायने रखता है. किसी और ने कुछ किया, ये मायने नहीं रखता, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट दैट वन यू. I, me, myself are the three most important people in your life. Okay, so practices are to focus on yourself. So yeah, this is about the magic book. Now we go to the other book. Really excited to read a beautiful new book by Rhonda Byrne, which is called The Hero. Why hero? You know, who is a hero in a movie? Someone who fights everyone, someone who's brave, someone who has power, someone जो courageous है, someone जो कोई भी चीज 50th बिल्डिंग फ्लोर से गिर के भी वो जिंदा रहता है, वो हीरो है ना. प्रोटैगनिस्ट जो जिंदगी का होता है. सो द हीरो बेसिकली मीन्स दैट ईच ऑफ अस. ये बुक लिखी गई थी सबसे पहले सीक्रेट मूवी, जिसमें रोंडा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, दैट एवरीथिंग इज एनर्जी. जो आप रेडिएट कर रहे हो वही आपके पास वापस आ रही है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये लॉ है, चाहे हम तर्क वितर्क करें, चाहे हम बोले आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट डू इट, नो, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. ओके, सो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बताया था फर्स्ट वाली किताब में. सेकेंड वाली बुक में मैजिक जो हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्राने का जादू, ये हमको सिखाया है, जो हम शुरू से कर रहे हैं. क्योंकि असाइनमेंट बेस्ड किताब है, तो उसमें हमें नीचे गिरने का स्कोप नहीं होता, क्योंकि रोज हमें करना पड़ता है. रोज शुक्राना हमारे मतलब एक एक सेल में पेनिट्रेट हो रहा है. तो मैजिक बुक हम लगातार करते हैं. तीसरी उनकी आई थी द पावर ऑफ लव. ओके, प्यार की शक्ति पावर है वो. सो पावर ऑफ लव, जिसमें लव एवरीथिंग. लव का मतलब होता है एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज. इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट यू हैव टू गिव दैट लव एनर्जी. सो ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी बहुत ऊपर होती है. एंड लव की एनर्जी मीन्स आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाते हो, दैट वे. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी चौथे नंबर पे, द हीरो. दैट मीन्स यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ. You have the power to make anything possible. जो आप wildest of the dreams में भी नहीं सोच सकते ना, आपको उसको रियलाइज करने की पावर है. हीरो, हमको अपनी पावर नहीं पता होती है एक्चुअली. सो इस किताब में आप देखोगे कि हाउ यू नो लाइक वी बिकम, इस बुक पढ़ने के बाद एक्चुअली फील लाइक अ हीरो, यू नो, like the best of Shah Rukh Khan. Feel like a hero after this, because we are the power, we are the hero. We can design our life just the way we want to. अपनी जिंदगी को हम वैसे जी सकते हैं, अपनी जिंदगी को वैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे just the way we are, you know. That is the power, and that is about the book. So yes, we'll start reading. बेटी जी आप पढ़ रहे हैं हमारे लिए. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Yeah. You can read the title. Hero by Rhonda Byrne. ये जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये लिटरली देखो कि बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है जी अपना. मैं तो, मेरे पास तो पावर है. झंडा गाड़ने का मतलब होता है विक्ट्री, है ना. कि मतलब जैसे हिमालय पे भी जो लोग जाते हैं, व्हेन दे गो टू माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे वो फ्लैग लगा के आते हैं, दैट यस वी हैव डन इट. सो दिस इज यस वी हैव डन इट, दैट इज व्हाट इट मींस. हाँ जी. This is the story about why you are here on planet Earth. There is something special about you. There is something you were born to be, and do that not one of the other 7 billion of us was. There is a life you are meant to live. There is a journey
you are meant to take. This book is about that journey. 12 of most successful people living in the world today share their seemingly impossible stories and reveal that you were born with everything you need to live your greatest dream, and that by doing so, you will fulfill your mission and literally change the world. Once there was a hero. मैम आप म्यूट पे हो. हाँ, I realized it. So इतना beautifully ये लिखा हुआ है that आप हर एक जना is special and unique. और आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मीनिंग है धरती पे जन्म लेने का. उसको रियलाइज करो. ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है वो समथिंग यू वर बोर्न टू डू समथिंग, यू नो. और हम 7 बिलियन है आज की तारीख में, हम 8.4 बिलियन है, मे बी 8.5, आई डोंट नो. लास्ट जब मैंने देखा था तो 8.4 बिलियन थे. तो अब वो जब ये किताब लिखी गई थी वी वर 7 बिलियन पीपल. टुडे वी आर 8.5 और व्हाटएवर. सो हम हर एक जने का एक मतलब धरती पे पैदा होने का एक यूनिक मिशन है. ठीक है, और जो जर्नी हमको जिस तरह से जीनी है ये जर्नी उसके बारे में है. इसके बाद आप एक्चुअली हीरो फील करोगे. अभी तक हम कैसे जी रहे थे, विक्टिम बन के. यू नो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत हूँ, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, ये स्पाउस ऐसा है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है. दैट इज कॉल्ड विक्टिम की तरह जीना. ठीक है, अब हम जिएंगे एक हीरो की तरह. दैट्स सो व्हाट ये है, मैं हूं ना, मैं बदल दूंगी. सो इट इज लिटरली द जर्नी फ्रॉम मैं हूं टू मैं हूं ना. यू नो, ये वो वाली जर्नी है. सो दिस इज व्हाट इट सेज दैट इसमें 12 बहुत सक्सेसफुल लोग अपनी अपनी कहानी, रियल लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे जो हमको नामुमकिन स्टोरीज लगेंगी, इम्पॉसिबल स्टोरीज लगेंगी, बट उन्होंने अगर किया है तो हम भी कर ही सकते हैं, है ना. एंड reveal that you were born with everything you need to live your greatest dream. हम सबके पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम बहुत अच्छा केक बेक कर सकते हैं, यानी कि अपने सपनों की दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं. हम सबके पास है, पता नहीं है लेकिन हमको अभी अपनी पावर के बारे में. ठीक है, बट नाउ इन दिस बुक वी विल लर्न हाउ टू बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ. हाँ, एंड ये करने से हम अपनी जिंदगी का मिशन फुलफिल करेंगे. खूब सुख will, happiness will come, joy will come in our life, material things, possessions, और जो आपने सोचा था, मे बी आपको लग्जूरियस कार और घर ये सब चाहिए, मटीरियल थिंग्स, while at the same time आप दुनिया को कंट्रीब्यूट करोगे अपने ही तरीके से. अभी तक हम एमलेसली जी रहे थे. ये किताब आई हैव टेकन नाउ आफ्टर शक्ति गवैन बुक ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि शक्ति गवैन की किताब में हमने एक नई चीज सीखी है ग्रैटिट्यूड और लव के अलावा, was meditation, connecting to yourself. When you connect to yourself, that is when you meditate, even if it is for 5 minutes or 10 minutes, आप higher consciousness से connect करते हो. अब यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर है. ठीक है, अब इस किताब को पढ़ना, सोचना, समझना और अप्लाई करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमको पता है कि उस पावर को कैप्चर कैसे करते हैं, फनल कैसे करते हैं. पावर तो बहुत ज्यादा है बाहर ब्रह्मांड में. ब्रह्मांड की शक्तियों को फनल करना अपनी जिंदगी में, ताकि वो आपके थ्रू फ्लो हो जिंदगी में. तो जब वो आपके अंदर आएंगी, कहते हैं ना द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, जो मैंने आपको एक एफर्मेशन बताया है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स फ्लोज टू मी एंड थ्रू मी. मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी जिंदगी के अंदर मेरे पास फ्लो होती है और मेरे से फ्लो होती है. मतलब आप एक चैनल हो, यू आर जस्ट अ कॉन्ड्यूट, यू आर जस्ट अ पाइप. ओके, यू आर जस्ट दैट कनेक्टिंग पाइप. जिंदगी में डिफरेंस लाने के लिए हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप सोचते हो दैट आई रियली वांट टू बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, ओके, वो पावर आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पर्पस और आपका जिंदगी का गोल बहुत बड़ा है. ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आएगी, जिससे कि वो सारे सुख आप भोग लो जो आपने सोचा था कि दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, एंड नाउ you are funneling that up into this world in your own unique way by changing the life of the person right in front of you. That's it.
अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है आपकी वजह से, इसका मतलब है दैट यू आर डूइंग योर जॉब जस्ट परफेक्ट। ठीक है, अब उस चेहरे के पे स्माइल आई है, अब आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश होगी, बिकॉज ये सब एनर्जी का गेम है, ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रियलाइज दैट वी आर मैग्नेट्स, हम एक चुंबक हैं बस। जो हम शक्ति अपनी जिंदगी से दे रहे हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, वो मल्टीप्लाई होके घूम के आपकी जिंदगी में वापस आएगी। और जब वो पॉजिटिव शक्ति वापस आ रही है, एक नई सेंस, एक नई पावर हमारे अंदर होगी। ठीक है, सो नाउ वी विल लिटरली चेंज द वर्ल्ड, मतलब रियल वाला, कहने वाला नहीं है। सो उसके बाद ये स्टोरी शुरू हो रही है। वंस देयर वाज अ हीरो, जैसे बचपन में कहानियां सुनते थे उसमें ये लिखा होता था ना, एक बार की बात है, गांव में दो भाई रहते थे, है ना, ऐसे ही शुरू होती थी बचपन वाली स्टोरीज। सो जो हम चंदा मामा और उन सब में पढ़ते थे बहुत सारी, वैसे ही इस किताब की शुरुआत हो रही है। वंस देयर वाज अ हीरो, एक बार एक हीरो था, और वो हीरो कौन है? ईच ऑफ अस, बिट्टी जी जो पढ़ रही है, नवदीप जिन्होंने पढ़ा, प्रिया, मैं, हम, वो हीरो है। अपनी कहानी है ये, अपनी जिंदगी की। वंस देयर वाज अ हीरो, एंड दैट्स हाउ वी बिगिन दिस। आई थिंक वी कैन स्किप ऑल दिस। एट्रिया बुक्स का हम थैंक यू बोल देते हैं, जिन्होंने इनकी सारी किताबें लिखी हैं, मतलब पब्लिश की है। हाँ जी। Quote. Here is a test to find whether your mission on earth is finished. If you are alive, it isn't. Unquote. Richard Bach, Illusions. रिचर्ड बैक है वो। सो इसमें है कि इस बुक में हम देखेंगे कि क्या हम हीरो हैं कि अभी भी विक्टिम बने हुए हैं, और अगर सपोज हमें विक्टिमहुड का थोड़े से ट्रेसेस हैं भी, ठीक है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद हम हीरो बन जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो डेडिकेटेड टू एवरी हीरो है, ईच ऑफ अस जो हीरो है, सारे लोग अपनी जिंदगी के हीरो रहते हैं, लेकिन हमको पावर अपनी पता नहीं है। सो कंटेंट्स हम एक बार देख लेते हैं। ये किताब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2। हाँ बेटी जी पढ़िए। Contents, description, copyright, epigraph, dedication, acknowledgements, introduction. Part 1, the dream, the call to adventure, refusal of the call, finding your dreams, follow your bliss. Part 2, the hero, belief, vision, the mind of the hero, the heart of a hero, the way of the hero, commitment. Part 3, the quest, the labyrinth, naysayers and allies, the road of trials and miracles, the supreme ordeal. Part 4, victory, the reward, a life worth living, the hero in you. Featured in Hero. Further reading from Hero's contributors about the author. तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले इन्होंने हमको सिखाया है कि आप अपनी जिंदगी के हीरो बन कैसे सकते हो, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आप हीरो बन गए हो। ठीक है, अब आपकी जिंदगी गोइंग फॉरवर्ड कैसे होगी। सो या एक्नॉलेजमेंट्स, इसका मतलब है रोंडा बर्न किन किन लोगों को थैंक यू बोल रही है। तो आई थिंक इनसे हम थैंक यू बोलना सीखेंगे कि कितनी डेप्थ में थैंक यू बोलना चाहिए, इसीलिए हम एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी। Acknowledgements. Every new project involves a journey that begins with the seed of an idea and travels its own unique path until its final creation in the world. I love the thrill of the journey with its unexpected twists and turns, surprises, excitement, and joy. But more than anything else, when I look back on the journey I have taken, I am completely humbled by the number of incredible people who played a vital role in helping bring the project into the world. The journey of creating Hero was a joy from beginning to end, and I would like to acknowledge the following extraordinary people who made it possible for you to hold this special book in your hands. Heroes contributors
who came from all over the world to inspire and uplift others through sharing their experiences, and whom I had the immense honor and privilege to work with: Liz Murray, Peter Foyo, John Paul DeJoria, Anastasia Soar, Michael Acton Smith, Peter Burwash, Mastin Kip, G.M. Rao, Pitt Carroll, Leard Hamilton, Len Beachley, and Paul Orphalia. Thank you for trusting me, for unhesitatingly giving your precious time, and for seeing the vision and potential of Hero when it was just a seed of an idea. The contributors' wonderful assistant for their invaluable help, the amazing people working for the contributors' foundations and charities. Thank you for being a part of Hero and allowing us to highlight the great work you are doing. Special thanks to Myra Alejandria Garcia, Luca Karp, Bhuvana Chakrabarti, James Devon, Megan McGrath, and Tamara Azar. The secret team members, Ski Byrne and Paul Harrington, who worked closely with me in creating the structure of Hero, who undertook the enormous task of compiling the contributors' words, and who provided genius insights throughout its creation. In addition, thanks to Ski for her depth of understanding and brilliant editing of my writing. Hero would not be what it is without her editing. Glenda Bell, who project managed Hero and who not only brought the contributors to Hero, but who managed the scheduling of interviews and liaised with all contributors, foundations, and Andrea Kerr, who worked diligently side by side with Glenda to bring the perfect contributors to Hero. Thank you. Jen Child, who is in charge of publishing for The Secret, thank you for your encouragement, enthusiasm, and tireless work on Hero in uniting the publishing, graphics, and website teams from across the planet into a united creative force. The creative director of The Secret, Nick George, thank you for your magnificent drawing and original artwork for Hero, and for continually inspiring me with my writing to live up to your graphic work. To our graphic team at Goza Media, Shamus Hoare, and Anna Wise, thank you for your dedication and talent yet again. My phenomenal publishing team at Ataria Books and Simon & Schuster for their support of my books of The Secret and me. Thank you to Carolyn Reddy, Judith Kaur, Dennis Elio, Darlene DeLillo, my editor Sarah Brandman, and her guidance Lisa Kim, Ellen Aaron, Paul Oleski, Jim Thiel, Danielia Waxler, and the copy editors Asol Soar and Kimberly Goldstein. The secret team members whom I am blessed to work with every day: Donald Zick, Laurie Sharapov, Mark O'Connor, Josh Gould, my personal assistant Jill Nelson, Corey Johnswing, Peter Byrne, Sheely, and Marcy Colton Creeley. Our legal team at Greenberg Glusker, Bonnie Eskenazi, and Oren Moss. My eternal thanks to Brad Brain of Manger Tools, to Laura Reeve and the team at our PR company, Edelman. Thank you. My
friends, and family who continue to support and inspire me in my work and whose presence in my life I dearly cherish. Thank you. And to my wonderful parents, you were an absolute best. My daughter Hallie, who teaches me to ask for answers beyond what is known in the material world, and her perfect creation, Savannah Byrne, Corinne, for their love and support, Kevin Kidd, McCamey, and beautiful Okuden, Paul Corin, and Angel Martin values for his continual spiritual guidance and wisdom. Lastly, the idea of for hero came through a flash of insight that I received one evening, and so my deepest gratitude to the universe and the universal mind for inspiring me with such a special project and for guiding me through every step of its journey to its creation on planet Earth. Yeah, I think इतना डीप लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो हम इनसे सीख सकते हैं. मतलब पहले उन्होंने सारे मतलब एक एक नाम इसमें याद रखना, कि किसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, दिस इज फेनोमिनल. और उन्होंने हर नाम के आगे एक एडजेक्टिव किया है, लाइक फॉर द ब्रिलियंट वर्क, फॉर एनकरेजिंग सपोर्ट, फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स. That's something to be learned. And I think इतना deep level of gratitude. अगर इन्होंने अपनी दोनों बेटियों के बारे में लिखा है, अपनी वो दोनों बेटियां और अपने दोनों दामाद, ठीक है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ऑफ कोर्स थे, है ना, बिकॉज द रियल इंस्पिरेशन केम फ्रॉम हर फैमिली, बिकॉज इनकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी राइटर्स भी हैं. और वो जिस तरह से पूरा स्टाफ मैनेज करना सब, और इसमें अलग अलग लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि वो कहाँ पे थे और क्या प्रैक्टिस करके वो कहाँ जिंदगी में पहुंचे. ठीक है, तो उन सबको इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके इंटरव्यू शेड्यूल करना, वो किसने किया, मतलब फोन करके उनको, ये भी इन्होंने लिखा है. तो किसी को भूल ही नहीं है इसमें, मतलब अमेजिंग लेवल. और फिर उन्होंने एंड में यूनिवर्स को कहा है, क्योंकि उनको मेडिटेशन में ये इंसाइट आई थी. मेडिटेशन में ही एक्चुअली इंसाइट्स आती है कि आगे कैसा. जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, बिलीव मी, कल सुबह जब मैंने सेशन स्टडी जब हम लोग का साथ कर रहे थे, मुझे नहीं पता था हम कौन सी किताब कर रहे हैं. मैं बहुत टाइम से वो मतलब सोच रही थी, एनालिटिकल ब्रेन, तो बट देन आई जस्ट थॉट दैट ओके, आई हैव टू आस्क द यूनिवर्स दैट अब कौन सी किताब करनी चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाए, जिसके लिए रेडी है और रिसेप्टिव है हम. बिकॉज हमारा रेडी और रिसेप्टिव होना भी जरूरी होता है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट केम एज अ फ्लैश हीरो. और मैं कुछ पढ़ रही थी और ठीक है, तो वो कोई और सेंटेंस था और उसमें ये हीरो लिखा हुआ था. सी, दिस इज हाउ यूनिवर्स टॉक्स. क्योंकि मैंने क्वेश्चन फ्लोट कर दिया था यूनिवर्स को जब मैं सुबह मेडिटेट कर रही थी, तो मैंने क्वेश्चन फ्लोट कर दिया था, विच वाज अराउंड 8:30. आई वाज मेडिटेटिंग एट 8:30 yesterday, 8:30 बजे, जस्ट गोइंग फॉर अ क्विक शावर. उसके बाद एंड फिर जब मैं ऑफिस पहुंची तो कुछ ऐसे ही पढ़ रही थी, कुछ ऐसा था, तो उसमें कुछ द हीरो करके लिखा हुआ था. फिर मैंने फटाफट अपना मतलब ये फोल्डर निकाला जिसमें किताबें हैं, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं था कि हीरो है भी कि नहीं है, मतलब पीडीएफ नहीं तो डाउनलोड कहीं से लेना पड़ता. एंड देन आई सॉ दैट देयर वाज दिस बुक कॉल्ड हीरो, जो मैंने बहुत पहले, बहुत आई थिंक 2020 में मैंने पढ़ी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एक ही बार पढ़ी हुई है ये किताब, ठीक है, और वो कभी कंप्लीट नहीं हुई. हीरो मैंने एक बार जब पढ़ी थी वो पूरी कंप्लीट नहीं की थी, एंड का नहीं पढ़ा था मैंने. आई थिंक आई हैड डन ओनली 60% ऑफ इट. So even I am excited to unravel that why is the universe told us for all of us. The universe को पता है ना, हम सब एक ग्रुप में पढ़ते हैं, क्यों ये किताब ही पढ़ने को बोला, ये हमको पता लगेगा. ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप से पूछा करो जब कोई, यूनिवर्स लव्स क्वेश्चंस. So you ask this, that what is the book, that will transform life and that we are ready for. And then this is how it happens. So इसी तरह रोंडा बर्न को भी हीरो लिखने का इंस्पिरेशन आया था मेडिटेशन के बाद, और मतलब सडन फ्लैश ऑफ लाइट आई थी, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है. सो माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्सल माइंड फॉर इंस्पायरिंग मी विद सच अ स्पेशल प्रोजेक्ट, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा और हमारा रीजन जो है इस प्लैनेट अर्थ को क्रिएट करने का. फिर उसके बाद उन्होंने, यूनिवर्स ने 8.5 बिलियन हीरोज बनाए जिनको अपनी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं है.
लेकिन ठीक है, हम इतने जितने भी जने हैं हम सीखेंगे कि क्या है। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, झंडा गड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो या लेट्स, हाँ जी। This book is about a story. ओ आई एम It's सो a सॉरी, आई एम सो बेटी जी, टाइम हो गया है, अब मैंने देखा ठीक है, अभी ठीक 7:03। That's ठीक है, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट टुमारो। और बहुत मजा आने वाला है और जिंदगी बहुत बदलेगी, बिकॉज जब भी कोई नया प्रोजेक्ट जिंदगी में शुरू करते हैं, पहली बात फ्रेशनेस होती है उसमें, एंड फ्रेशनेस बहुत जरूरी होती है। और दूसरी चीज कि एक नई इंसाइट मिलती है जिसकी शायद हम तलाश कर रहे थे अभी तक, नॉट शायद, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ठीक है, वी वर ऑल लुकिंग फॉर समथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस टू आवर लाइफ, लेकिन शायद कुछ वर्ड्स के लिए होता है ना, समय के साथ ही हम तैयार रहते हैं कि ठीक है अब समय आया है, अब हम इसके लिए रेडी हैं, और इसकी पावर को, यूनिवर्स की पावर को समझने के लिए हम रेडी हैं, समझने के लिए कि हमारा धरती पे आने का रीजन क्या है। That is what we'll come to know. So it's a beautiful book. You are thoroughly going to enjoy, but consistency रखने की कोशिश करना बहुत जरूरी होती है। कभी अगर ये सेशन मिस हो जाता है, so definitely go on the YouTube, because even magic के साथ, you know, like I am myself studying so much, you know, meditation में बहुत hunches और inspirations आ रहे हैं। मतलब हम सब ऐसे आमने सामने कभी बैठते नहीं है, तो इतना ज्यादा 1 घंटे में बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। बट इवन माई लाइफ इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि कई बार मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं। कई बार मैं किसी किताब को रेफर करती हूँ तो मुझे याद नहीं होता है कि मैंने उसको कब पढ़ी थी। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैंने उसको पढ़ी भी थी कि नहीं पढ़ी थी। मैंने एक दिन आपको ऐसे ही पावर ऑफ अवेयरनेस के बारे में बताया था, उसके मैंने बस 2 ही पेज पढ़े थे। देखिए, वो नेविल गॉडार्ड की किताब है, लेकिन मैंने उसको, उसका 2nd चैप्टर का आपको कुछ बताया था कि मतलब उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा नहीं था। सो यूनिवर्स लगातार आपके थ्रू कम्युनिकेट करता है जब इंटेंशन बहुत बड़ा होता है। दैट मीन्स दैट यू, व्हाट आई एम टॉकिंग इज नॉट व्हाट दीप्ति टॉक्स, आई एम जस्ट अ चैनल। You know, universe is using me as a tool, as a puppet, as a conduit to transform the world. And this is happening with all of you also. हम realize नहीं करते हैं, बट ऐसा हमारे साथ होगा और होता रहेगा। और इस किताब पढ़ने के बाद और ज्यादा ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब आपको लगेगा कि क्या मतलब ये तो फेनोमेनल हो गया, ये हुआ कैसे। ठीक है, बट या गेट यूज्ड टू इट, दिस विल कीप हैपनिंग, बिकॉज वो पावर धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अंदर आ रही है, जो सिर्फ हमारी जिंदगी में गोल्ड नहीं लेके आएगी, बट उस गोल्ड की चमक दुनिया में फैलाएगी। है ना, गोल्ड हैज अ वैल्यू। गोल्ड का अपने आप में क्या वैल्यू है? अगर हमारी तिजोरी में अभी गोल्ड रखा भी हुआ है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 18 कैरेट का, उसकी एक वैल्यू है ना। वो वैल्यू कैसे पता लगती है? वो पैसे के साथ कनेक्टेड है। हमको ये पता है कि यू नो लाइक इसकी वैल्यू इतनी है, तो पैसा उसको वैल्यू दे रहा है, isn't it? वरना गोल्ड की अपने आप में क्या है? फिर गोल्ड में एक शाइन होती है, दैट गोल्डन कलर दैट वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ। जब कोई भी हार या कान में हम गोल्ड का पहनते हैं, वी फील गुड अबाउट इट, वैल्यूबल। उसको हम तब पहनते हैं जब हम किसी बहुत स्पेशल ओकेजन पे होते हैं। गोल्ड का हार आप कब निकालते हो? व्हेन यू गोइंग समवेयर, व्हेन यू गोइंग फॉर अ वेडिंग, राइट? सो उसकी बहुत वैल्यू है। गोल्ड अपने आप में उस ओकेजन को और हमको वैल्यू दे देता है ना। एंड अगर आप उसको लेके जाओगे मार्केट में तो उसके पैसे के साथ वैल्यू अटैच्ड होती है। दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज बिकमिंग लाइक, यू नो, दिस इज व्हाट। सो ईच ऑफ अस इज गोल्ड। हम उसकी वर्थ बढ़ाते जाएंगे। अभी में भी वो 10 ग्राम 60,000 का हो सकता है इन INR। खैर, वी आर लॉग्ड इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम सबकी करेंसी अलग है। जो भी अभी की करेंसी है ये बढ़ती ही जाएगी, बट हम जो गोल्ड बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं उसकी वजह से ये पूरी दुनिया इल्यूमिनेट होगी, यानी कि दुनिया में वैल्यू आएगी। अब किस तरह से आएगी, ये एक जर्नी है, बिकॉज वी नेवर रीच आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन एक्सपैंड हो जाता है जैसे ही आप वहां पहुंचते हो। आपने सोचा कि ठीक है मुझे 300 फीट ऊपर जाना है जिंदगी में, आप 300 फीट ऊपर जाओगे। अब आपका डेस्टिनेशन, आपको लगेगा अरे ऊपर इतना सारा भी तो और है। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि नहीं, लेट मी जस्ट गो टिल देयर। फिर आपकी जर्नी, इट्स नेवर, वी नेवर हैव इट डन, यू नो लाइक जिंदगी में कभी रुकावट या स्टैग्नेशन या सीलिंग नहीं आती है, कभी भी नहीं आएगी। आप देखना, आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा वो ये सब कितना छोटा होता है और इतना बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। फिर आप उसकी तरफ आगे चलोगे, एंड दिस इज द जॉय ऑफ द जर्नी दैट वी नीड टू स्केल इन आवर लाइफ।
and that is the best way to live. जब आप सारे सुख भी भोग रहे हो अपनी जिंदगी में, हर तरह का सुख होगा ना, इज्जत, पैसा, शोहरत, कामयाबी, ठीक है, अच्छी सेहत, बहुत अच्छी हेल्थ, खुशियां, खुशियों की बारिश, वो सब होगा। और फिर आप गोल्ड हो, अब आप दुनिया में उसकी वैल्यू स्टैब्लिश करो अपने ही तरीके से। दैट्स व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट. It's all about, it says that the book is about a story, the story of a hero. Once there was a hero. ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है लिटरली, तो मैं नहीं बोल रही, लिखा हुआ है किताब में. Once and that hero is each of us. जो भी आपका नाम है, I am the hero and I am. That is what this whole book is about. Very very powerful. You're going to love it, you're going to enjoy it. मैं कोशिश करूंगी पूरी जस्टिस करूं इस किताब को डिकोड करके समझाने में, फॉर पीपल जो सिर्फ हिंदी समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश की किताब है, इसीलिए आई ट्राई टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों भाषा में बोलती हूँ, ताकि बहुत अच्छे से हम इसको समझ पाएं. और समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना, तभी तो डिफरेंस लगेगा. सोना तो आप बन ही चुके हो मैजिक से. मैंने पहले बोली थी ना, that each of you have become gold. Now you have to go in the world and shine in your own unique way. Okay, जो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं. और इतने छोटे छोटे बच्चे, लाइक there's दिशान, there's सौम्या, बहुत छोटे लोग हैं ये, मतलब उम्र में छोटे हैं, लाइक they are all in their 20s, बट इनकी बातें इतनी प्रोफाउंड होती हैं कि they shake us also, that the level of gratitude that they have, it is really amazing. So all those of you who are in your teens and 20s, and when you share your experience, I think they are quite earth shaking, but because उस level of understanding के साथ दुनिया लीड करना is like really amazing. पहले नहीं था, अभी है, और अभी और better and better and better होता जाएगा. ठीक है, while at the same time ये मत सोचो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट वही जो मैंने चीज आपको पहले बताई थी, 125th फ्लोर पे खड़े होके जब आप अपनी प्रॉब्लम को जमीन पे देखते हो, तो पहली बात तो नजर भी नहीं आएगी, और अगर वो नजर आएगी भी तो वो स्पेक ऑफ डस्ट की तरह ही दिखेगी. So this journey is about elevating ourselves and taking us up. It's not about changing that thing in front of us. That thing will not even matter. ना वो affect करेगी, ना वो matter करेगी, and that's how it is like. So yeah, thank you so much, Bitti ji and Navdeep, for reading. Yes, Sunaina, you want to share? Hi Deepti. Hi everyone. Actually, मैंने भी ना नेक्स्ट बुक शुरू करनी थी, तो 3 books in a row, जिनकी स्टोरी ऑलरेडी मैंने है. सो इवन आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे कौन सी लिखनी चाहिए. तो मैंने 3-4 दिन पहले मैंने भी नहीं 3-4 दिन पहले नहीं, आई थिंक कल या परसों रात को ही बिकॉज मैं एक ना मेरा एम होता है, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीप्ति की, उससे कि मैं हर साल कोई एक मॉन्यूमेंटल विक्ट्री मेरे को होता है कि मुझे चाहिए. 21 दिसंबर में मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो मैंने 21 दिसंबर में पर्पल काउच प्री लॉन्च की थी, राइट. तो और 22 में उसका मतलब इनॉग्रेशन हुआ था, दीप्ति भी थी वहां पे. तो अब 23 जाने वाला है, तो मुझे वही हो रहा था, 2 महीने रह गए हैं. जब दीप्ति ने कल बोला कि ये 2 महीने आपके लिए, यू हैव टू मेक इट समथिंग वेरी बिग, तो मेरे माइंड पे और आया कि यार ओह 2 महीने रह गए, मुझे इस साल क्या मैंने ऐसा बड़ा किया. सो वही बुक्स चल रही थी, तो कल ही मुझे एक कहीं से वो हिंट मिला आते जाते कहीं, और आज जब मैंने ये पढ़ी, और वो मेरे को नाम फिर बिल्कुल क्लियर हो गया. इट इज लाइक शॉपिंग फॉर माई सोल. सो दिस इज द बुक नेम, जो मैं आज आप लोगों के सामने सबसे पहले रिवील कर रही हूँ. और ये मैंने 4 साल पहले बोलते हैं. मतलब वो मैं अपने सोशल मीडिया पे अभी तक भी वहां पे भी नहीं किया, बिकॉज फॉर मी आप सब मेरे लिए सबसे, मतलब मेरा ट्रेजर आप लोग ही हैं. और दीप्ति क्या बोला, मैं बीच में भूल गई ना. और इस बुक का बेसिकली, इसको मैंने लिखा है थोड़ा सा, मैंने इसके 20-25 पेजेस, लगभग 400 वर्ड्स मैंने इसके लिखे थे 2016 में. बट तब मैंने इसको बंद कर दिया. आई फील कि अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, इसके लिए बहुत दूसरे लेवल का कंटेंट चाहिए, अलग तरह की रिसर्च चाहिए, तो मैंने बंद कर दी थी ये बुक. एंड
अब मेरी लाइक अभी मैं बिकॉज मैं थोड़ा दुर्गा माँ को, मेरे यूनिवर्स दुर्गा माँ है, तो मैं सोच रही थी कि नवरात्रों में इसको प्री लॉन्च करूंगी अपने सोशल मीडिया पे। और आज जब ये सब हो रहा था, बुक का मैं पढ़ रही थी, हीरो लाइक आया और इस तरह से, तो मुझे भी आया कि नो, नाउ दिस इज द टाइम। So yes, I am going to write about it. It's a very beautiful, but it's a fictional story. But depend again, it's okay. It's correlating क्योंकि ये भी बहुत लोगों के different experiences पे होगी, including my experience too. So which I learned from this group, दीप्ति, प्रिया, सब मैं सबसे सीखती हूँ। So my friend, my mentor, ये तो मेरी एक्नॉलेजमेंट में पिछले बार भी थी, आप सब मेरे लास्ट पर्पल काउच में भी थे। तब वो SCL ग्रुप था, सुपर एक्सलरेटेड ग्रुप एंड इट्स मेंबर्स। बट इस बार चेंज होगा, मैजिक एंड मिरेकल्स बाय दीप्ति वर्मा एंड ऑल द पर्सन, जितने भी लोग हैं। सो या दैट्स माय शेयरिंग एक्चुअली। वेरी नाइस। हमने प्री लॉन्च कर दिया और हमने ऑलरेडी उसको सक्सेस करार दिया है। अब आप अपना काम कीजिए जो आपको करना है। हमने इसको सक्सेस बना दिया है। पूरी दुनिया के हर एक कोने में आपकी किताब जाएगी एंड यू विल रिसीव लाइक all the accolades and money from all over the world from that book. So I know the नाम ही इतना सुंदर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी गुड। बहुत सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप फ्रेंड रश्मि शर्मा, अगर वो हैं अभी सुन रही हैं, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया, हालांकि बुद्धिज्म में भी उन्होंने किया था, बट इस ग्रुप में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, दीप्ति से मिलवाया, और बाकी अब तो लाइन ही है। मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे किसी मोमेंट नहीं अकेले फील होता कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है तो मैं किससे बात करूं। पहले ऐसा होता था मेरे, अब ऐसा लगता है कि किस से बात करूं। मतलब मुझे पता है मैं किसी को एक मैसेज भी डालूंगी तो तुरंत मुझे रिप्लाई आएगा कि बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू। सो दिस इज ये ऑल हमने आज बिकॉज दो फ्रेजेस देखे सुनैना। एक तो आपने बोला किससे बात करूं पहले होता था, अब होता है किस से बात करूं। और दूसरी चीज मैं हूं से मैं हूं ना। so it is like, so very soon you'll be reading Shopping for My Soul, so get ready for that. Yeah. Thank you so much. Amazing. Yeah, you'll get lots of inspirations and ideas. Yeah, Universe yeah. has chappar to give to you. So Yeah, amazing. yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. So do we just log out today and we'll meet again tomorrow. And happy birthday, Navdeep, again. And may you be blessed with the choicest of the things that you've always dreamt and desired, and have a very, very enriching, fulfilling, happy, joyful life. And सारी सफलता आपके हाथ में हो, आपकी जिंदगी में हो। Thank you so much. Bye bye. Congratulations, Sunaina. Thank you, ma'am. This is such a wonderful. अच्छा, Thank you, ma'am. सुनैना का कितना अच्छा प्री लॉन्च था ना बुक का। Yeah. Lots of For my We are soul. privileged to attend this session. The name is beautiful. Yeah. We are all Very privileged आपको people. attend करना है session. Yeah. Thank you so much. But again, urging for consistency, very, very important. ठीक है, अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना हो तो कल से हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे बुक का, हीरो बुक का इंट्रोडक्शन कल से शुरू होगा। आज हमने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स पढ़े थे और हमने बस ये पढ़ा था दैट यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। तो अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना हो तो आप कल से करा सकते हो। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, जो मैजिक बुक है वो हम एग्जैक्टली 6:35 तक खत्म कर देंगे। And we will try and do more of the hero book because that will add a lot of freshness and insight and great growth in life. So that is my prayer and also intention that it will bring a great growth in life. और सबसे अच्छी बात है ये जो सुनैना ने बोला था, जो मैंने कहा था कि अगले 2 महीने हम सबके सबसे मॉन्यूमेंटल होने चाहिए। इस साल को खत्म होने में 2 ही महीने बचे हुए हैं, 2 महीने और 10 दिन। ठीक है, तो ये 2 महीने और 10 दिन ये हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत होने चाहिए, सबसे कंक्लूसिव होने चाहिए, आलू टमाटर खा सकते हैं। and super हाँ। success. So there's a background music playing, huh? ये Yes, नवरात्र आलू की टमाटर। रेसिपी शेयर हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम। घर में आलू टमाटर बने आज। हाँ, नाइस। आज ही कंचक कर रहे हो? नहीं, बट ये तो वैसे व्रत होगा ना दीप्ति। अच्छा, मैम, पता नहीं, आलू कंचक टमाटर तो और परसों पूरी और है। हलवा तो वो लास्ट डे बनाते हैं ना, अष्टमी मे नवमी। बी आज लंच क्यों पैक हो मिल रहा है गया कि किसी क्या का। बनाना है?
आलू टमाटर बनाइए सब लोग। जब हम उबले हुए आलू खाते हैं तो उसमें जैसे जो लोग भी वेट वॉच कर रहे हैं, जिनको लगता है आलू बहुत फैटनिंग होते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उबले हुए आलू फैटनिंग नहीं होते, ठीक है, बिकॉज उसका Wow. ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है उबल के। यूज दैट। ये और उसमें देयर इज अ केमिकल कॉल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च, वो रेजिस्ट होता है एब्जॉर्ब होने से, तो बहुत अच्छी बात है, खाइए आलू टमाटर। बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो। Bye-bye. विश यू Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय। Bye bye.